So 11th class economics. Now consumer equilibrium in the case of two commodities, that is on 2.10 page. Here law of diminishing marginal utility apply on both the commodities. Law of diminishing marginal utility means if you go on consuming more and more unit, utility derived from an extra unit will be decreased. So that is the law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility apply in this case. And another thing that consumer normally consume two commodities at least. वैसे तो consumer consume more than two commodities, but here we can take two commodity because that we can show with the diagram. So law of equimarginal utility apply in this case. And here law of equimarginal utility, the name of equimarginal utility is law of substitution, law of maximum satisfaction, and law of Guzman's second law. So that is another name. You have to learn all these names. Now here the definition of law of diminishing marginal utility. What is that? Before discussing the definition, first of all we'll come to the conditions of consumer equilibrium. So first of all, what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium is the situation where consumer wants to sustain, and with there this is a situation where consumer is getting maximum satisfaction. So what is the formula of consumer equilibrium in the case of two commodity? Cardinal approach, or you can say Marshall analysis. That is this: marginal utility of x upon px is equal to marginal utility of y upon py is equal to marginal utility of m. So what are these? This much formula you have done in the case of first commodity, that marginal utility of x commodity upon price of x is equal to marginal utility of money. Now one more thing will be added, that is mux by px, that is the same, is equal to mum, same one. Now this will be more added because there are two commodities, so a marginal utility of y commodity upon price of y commodities. So that is marginal utility of x commodity upon price of x. There you have to mention all the explanation, that what is mux, what is px, what is muy, what is py. Mum is the marginal utility of money, that is utility of 1 rupee. Means 1 rupee can purchase how much standard unit? The utility derived from those standard unit is known as utility of rupee 1. And now marginal utility of x commodity, marginal utility, that is a marginal utility of x commodity. Here is price of x commodity, that is marginal utility of y commodity. And here is the price of y commodity. So these are the explanation for the formula. So here what you just got, that is the utility of 1 rupee. That is also utility of 1 rupee, because when you are dividing marginal utility by price, then you will get utility of 1 rupee. Here also utility of 1 rupee. So utility of 1 rupee, last 1 rupee which spent on all the both commodities, that should be same, and that should be equal to marginal utility of money. This is law of equimarginal utility. So what is equimarginal utility? That is, here is the definition. Law of equimarginal utility, consumer get maximum satisfaction, fine, and when the ratio of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal, and marginal utility falls as commodity increases. So there said the ratio of marginal utility of both the commodities and price of both the commodities. He is ignoring marginal utility of money. Implied that should be equal to marginal utility of money. That is implied over there. That is not mentioned in the formula. You can write in law of equimarginal utility that ratio of marginal utility of and price of x should be equal to marginal utility of price of y should be equal to marginal utility of money. All three should be equal to each other. You can write in this way also in law of equimarginal utility. Fine. So there now I'm taking the basically the table. Quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I have taken for both the commodities, and the commodities have taken pen or pencil. So here the marginal utility of pencil. Suppose first unit of pencil gives you 18 util, then second unit 16 util, third unit 14 util. Here I am just applying law of marginal utility. I am applying over there. क्या होता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट पे डिक्रीज होती जाएगी. तो 18, 16, 14, 12 देखो सब कम होती जा रही है. दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ पेंसिल. सेम क्वांटिटी आई एम यूजिंग फॉर पेन. दिस इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेन. And 24, 21, 18, 15, 12, 9, 3 likewise. How I just got this marginal utility? I am fixing the price of pencil, that is 2. I am fixing the price of pen, that is 3. इसका प्राइस 2 है, इसका प्राइस 3 है. तो मुझे पता है अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनना है कि MUX को PX से डिवाइड होना है. तो मैं 2 से क्योंकि इसको डिवाइड होना है तो मैं 2 का टेबल चला दिया यहाँ पर.
और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेन को डिवाइड होना है 3 से, तो मैंने यहाँ पर 3 का टेबल चला दिया ताकि मेरा पॉइंट में आंसर ना आए और मुझे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। पेंसिल में 2 रुपीज़ प्राइस है, तो आई हैव टेकन द टेबल ऑफ 2 रुपीज़, जो 2 से बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, जैसे 2 9 18, 2 8 16, आप कुछ भी चला सकते हो, लेकिन इसके बाद वाला नंबर ऊपर वाले से कम होना चाहिए। देखो ये है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और यहाँ भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये है प्राइस ऑफ पेंसिल, ये है प्राइस ऑफ पेन, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए ऐसे। अब MUX को यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेंसिल को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड किया, ये आ गया 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6, और यहाँ पर 3 से डिवाइड किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेन को, 3 8 24, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, 3 4 12, 3 3 9, 3 1 3। तो ये मेरे काम की जो चीज़ है वो ये है मेरा फॉर्मूला जो मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 रुपी में यूटिलिटी कन्वर्ट कर दी। दीज ऑल द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी, दीज ऑल द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी। ये 1 रुपी की यूटिलिटी मैं जो मुझे एक्चुअल में मिल रही है, दिस इज़ द यूटिलिटी, एंड दिस इज़ द यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। सपोज करो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M 6 यूटिल है, 1 रुपी की यूटिलिटी 6 है, तो अब मुझे यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है कि मेरे को कितनी यूनिट खरीदूँगी मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहाँ पर 1 रुपये की यूटिलिटी मुझे मिल रही है 6, यहाँ मिल रही है 6, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 यूनिट, पेन ले लिया मैंने 3 क्वांटिटी 3 यूनिट, और पेंसिल ले ली मैंने 4 यूनिट। यानी कि मैं 3 पेन लूँ और 4 पेंसिल लूँ तो मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM, सब बराबर हो रहा है, 6 एंड देन 6, ठीक है, यहाँ सब इक्वल हो रहा है, ठीक है। दोबारा सुनो, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM, ये तीनों इक्वल करने हैं। तो अल्टीमेटली MUX से तो मुझे कोई मतलब नहीं ना, मुझे तो PX से डिवाइड करना है, तो जो डिवीज़न के बाद नंबर आता है मेरे मतलब की चीज़ वो होगी ना फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये मैंने लिया, और ये मैंने लिया MUY/PY, यानी कि MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेन। अब मैंने यहाँ पर ये 6 मैंने जानबूझ के सेट किया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 इसकी 3 यूनिट और इसकी 4 यूनिट और मुझे 6 यूटिल चाहिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया ये। तो 4 यूनिट ऑफ पेंसिल give me 6 util satisfaction, 3 unit of pen give me 6 util satisfaction per rupee, and here per rupee I am also expecting 6 util, तो सब 6 util है, तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। 3 यूनिट्स आपने ले लिए यहाँ पर और 4 यूनिट्स आपने ले लिए, ठीक है। 4 यूनिट्स आपने लिए पेन के और 3 यूनिट आपने लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 3 आपने पेन लिए और 4 आपने पेंसिल ली, तो टोटल कितना हो गया 7। क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं 7, उसके बाद एक्स एक्सेस पे ड्रॉ करते हैं। किससे शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के नीचे जस्ट इक्वल लेंगे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 से ज़्यादा आप इसमें क्वांटिटी नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो आपका डायग्राम ठीक से नहीं बनेगा। जो तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसकी क्वांटिटी लो, जैसे 3 और 4 दोनों को प्लस कर दो, 7 यूनिट तक ही आप अपने डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करोगे, एक ये जो डायग्राम है ये 2 कमोडिटी को दिखा रहा है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 5 4 6 7 क्वांटिटी ऑफ पेंसिल। अब यहाँ से शुरू करोगे, ये इधर से शुरू करोगे लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से शुरू करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तुम्हारी होगी क्वांटिटी ऑफ, ये होगी क्वांटिटी ऑफ पेंसिल, ये होगी क्वांटिटी ऑफ पेन। अब क्वांटिटी ऑफ पेंसिल के लिए वाई एक्सिस कहाँ है, ये रहा MUX बाय प्राइस ऑफ पेंसिल, मार्जिनल ऑफ पेंसिल अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। और यहाँ पर इसके लिए क्या लोगे, पेन के लिए क्या लोगे, यहाँ पर मार्जिनल ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेन, यहाँ पेन लोगे, यानी कि इसका ऐसे बन गया डायग्राम और इसका ऐसे बन गया पेन का डायग्राम। इस तरह से 2 कमोडिटी फिट करते हैं एक ही डायग्राम में, ठीक है। अब तुम ले लो जो तुम्हारे नंबर है, ये तुमने ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस के 2 पार्ट हैं, इसीलिए मैंने ये लाइन को खाली छोड़ दिया और नीचे दिखा दिए 2 पार्ट इसके। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है पेंसिल की 9 दिखा रही है, मुझे ये ड्रॉ करना है। फर्स्ट पे 9, सेकंड पे 8, थर्ड पे 7। देखो मैंने लिया फर्स्ट पे 9, सेकंड पे 8, थर्ड पे 7, 4 पे 6, 5 पे 5 एंड 6 पे 4 एंड 7 पे 3 मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये इस लाइन के लिए मेरा वाई एक्सिस यहाँ पर है। 7 पे 3 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। अब मैं पेन के लिए लूँगी, फर्स्ट पे पेन है 8, सेकंड पे 7, थर्ड पे 6, लाइकवाइज मैं लूँगी। पेन के लिए क्या था, फर्स्ट पे 8,
सेकंड पे 7, थर्ड पे 6, 4 पे 5 एंड देन 5 पे 4, 6 3 एंड 7 1। मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 1। अब ये तुम देखोगे 4 और 3 ऑटोमेटिकली, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने डिसाइड किया था, ये ऑटोमेटिकली आपस में इंटरसेक्ट करेंगे अगर तुम 7 लोगे क्वांटिटी टोटल। अगर 7 से ज़्यादा लोगे तो फिर ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर 4 यूनिट ऑफ पेंसिल एंड 3 यूनिट ऑफ पेन गेट्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसे आप बनाओगे टेबल और ऐसे आप बनाओगे डायग्राम इसका, ठीक है। और अब बताओ ये क्या चीज़ है, ये है देखो, ये जो तुमने ड्रॉ किया है यहाँ से फर्स्ट पे, ये तुमने किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेंसिल अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। और ये तुमने क्या किया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेन। ये लाइन है, पेन की है, ये पेंसिल की है। पर रुपी यूटिलिटी पेंसिल की लेगी, पर रुपी यूटिलिटी पेन की ले ली, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 6 यूटिल। 6 यूटिल के लिए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए क्या कर दोगे, एक लाइन लगा दोगे 6 यूटिल की। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दो सभी क्वांटिटी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 6 यूटिल। ये 6 यूटिल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फाइन, इस तरह से तुम डायग्राम बनाओगे 2 कमोडिटी केस में। ये तुम्हारा फॉर्मूला है MUX बाय PX इक्वल टू MU बाय PY इक्वल टू MUM। अब ये इक्वल होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन जब ये इक्वल नहीं होगा तब क्या करना है, जब ये इक्वल नहीं होगा यानी कि एक दूसरे से भी ज़्यादा होंगे, तो अब इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी को कम करोगे x की तो ये y के बराबर आएगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, दे बोथ आर कांस्टेंट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग्स। आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी के सेटिस्फैक्शन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज़ करोगे, जाकर उसको पिटाई थोड़ी कर दोगे कि तू इसको मत खा। अब क्या करोगे, अब मार्जिनल यूटिलिटी की, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम करने का क्या तरीका है, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दो। जब तुम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी यूटिलिटी अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर डिक्रीजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x यू आर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेन, और यू कैन से x। इसको अगर x मानते हो तो आपको इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज द क्वांटिटी, और इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीज़ द क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करोगे तो यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करोगे तो यूटिलिटी, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे तो यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करोगे तो यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी घटाते जाते हो यूटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी और यूटिलिटी में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी एंड यूटिलिटी। देयर इज़ अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, दे आर हैविंग द रिवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये आप इस तरह से करोगे, या इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लो, या फिर इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर लो, या इसको इंक्रीज़ इसको डिक्रीज़ साइमल्टेनियसली कर लो। आप जैसे भी लिख सकते हो आंसर। तो मैंने आंसर लिखा फॉर, अगर दिस इज़ द सिचुएशन देन फॉर डिक्रीजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी यू आर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेन or x commodity and decrease the quantity of pencil so that marginal utility will be increased. बुक में बात करें तो आपका ये एक फॉर्मूला जो आपने मेंशन करना है, ये डेफिनेशन है जो आपने मेंशन करनी है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सॉरी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन मेंशन करनी है। एक कंडीशन ये है, लॉ ऑफ रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम एज इन द बोथ ऑफ द कमोडिटी एंड दैट इज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आप ये ऐड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, और यू कैन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई इन दिस केस। फिर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में आपको टेबल बनाओगे, इसमें टेबल को इतना अच्छे से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। इसने सीधा x और y की मार्जिनल यूटिलिटी ले रखी है, इसने नहीं बताया हुआ कि इसको प्राइस से डिवाइड करना है, लेकिन आपको जो मैंने टेबल बनाई है वो आपने फॉलो करनी है, और जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, MUX by PX is more than MU by PY, then what you will do, consumer is getting more marginal utility in the case of good X, so as compared to Y, so he will buy more of X and less of Y। इसको ज़्यादा परचेज़ करेगा ताकि यूटिलिटी कम हो जाए, इसको कम परचेज़ करेगा ताकि यूटिलिटी बढ़ जाए। दिस विल लीड टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड राइज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y एंड द कंज्यूमर विल गेट द इक्विलिब्रियम। और ये हो गया आपकी रिवर्स सिचुएशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। इस केस में क्या है, इसको डिक्रीज़ करना है तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो। अब इसको
इंक्रीज़ करना है तो उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करो, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, अलग से पूछा जा सकता है। जब आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद डायरेक्ट आप ये टेबल बना सकते हो। टेबल बना के आपने कंडीशन लिखनी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोथ अप्लाई इन दिस केस। पहली कंडीशन ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी कंडीशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई इन दिस केस। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई है, ठीक है। और इसके बाद ये टेबल बना के डायग्राम बना के उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। डायग्राम की और टेबल की एक्सप्लेनेशन इकट्ठा ही दे देना, क्योंकि दोनों आपने बना रखे हैं। तुम बताओगे कि एट फर्स्ट यूनिट मार्जिनलिटी ऑफ पेंसिल is more than marginality of pen, and then that will go on, and then at third unit of pen and fourth unit of pencil gives the per rupee utility same, so that is why it is the consumer equilibrium point. सिर्फ इतना बता के और उसके बाद बताओगे इसमें here down law of diminishing marginal utility apply because marginal utility is decreasing as more consumption is there or more quantity has been consumed. So as seen in the diagram here at fourth and third unit they both are intersecting. इसका नाम रख दोगे, P रख देना, इसका नाम T रख देना। नाम रखोगे कर्व का तभी एक्सप्लेन कर पाओगे। P curve is explaining marginal utility of pencil upon price of X, and T curve is explaining or showing marginal utility of pen and divided by price of pen, ठीक है। ये आप बताओगे। Due to law of diminishing marginal utility they are falling. Here prices are constant, and at fourth unit of pencil, third unit of pen we are getting consumer equilibrium. E is the point of consumer equilibrium, and this इसका भी एक लाइन का नाम रख दोगे। इसका नाम रख देना, सपोज करो आपने रख दिया इसका नाम A is the line of showing marginal utility of money which is constant for all quantities, and it is 6 util, and here at E point all the three are equal, ठीक है, which is showing in the formula दिखा देना। marginal utility of x upon price of x, marginal utility of y upon price of y is equal to marginal utility of money. तो ये उसके बाद अब अगली बात ये बताओगे marginal utility of x upon price of x if more than marginal utility of y upon price of y, then what will happen? Consumer has to increase the quantity of x commodity and decrease the quantity of y commodity. अगर रिवर्स हो जाए तो, अगर ऐसे हो जाए तो marginal utility of x upon price of x, इस तरह से हो जाए तो सिचुएशन, इन दिस केस कंज्यूमर हैज़ टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी एंड डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, सो दैट दे बोथ कैन बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये आपका 2 कम्युनिटी केस है जो आपने एक्सप्लेन करना है।